Good evening, students. I am Tina Arora. Welcome to my channel, Tina Arora Educare. Today we will do the exercise 3B of the book Exploring Mathematics with Mental Math. Yesterday we have done the quadrilateral family and their properties. Quadrilaters, in that video we have discussed about their three sons. Quadrilater have three sons, the trapezium, parallelogram and kite. Trapezium have three types, further three types that are isosceles trapezium, right trapezium and scalar trapezium. Parallelogram have further three types, rectangle, sphere and rhombus. Kite have no any another type. Today we will do the exercise of from that properties and by using that. Okay. Exercise 3B. First is filling the blanks. First question is filling the blanks. First blanks is in the parallelogram dash angles are supplementary. Quadrilateral parallelogram ਦੀ property ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ कोई भी पैरेललोग्राम है अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ if we have any parallelogram, suppose I have parallelogram, एडजेसेंट एंगल्स जो है उन्हों का सम क्या होंगे 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल्स किहड़े है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स एंगल का सम होंगे 180 डिग्री। सप्लीमेंटरी एंगल्स किहड़े होंगे है जिन्हों का सम क्या होंगे 180 डिग्री सप्लीमेंटरी एंगल। तो सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा किहड़े एंगल्स का सम जो 180 डिग्री होंगे, तो आंसर विल बी adjacent angles. Adjacent angles. Next question है in a parallelogram dash angles are of equal measure. Parallelogram ਦੀ properties ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ opposite angles ਹੁੰਦੇ angle A and angle C are equal measure. तो ਕਿਹੜੇ angles equal ਹੁੰਦੇ ਆ opposite angles. Opposite angles equal ਹੁੰਦੇ ਆ and adjacent angles ਦਾ sum क्या ਹੁੰਦਾ 180 degree. Both are very important properties. You have to remember these properties. Next is diagonal of a kite are dashed to each other. Now diagonals of a kite. Firstly we will draw a kite. Diagonals. Diagonals क्या होंगे हैं kite दे perpendicular to each other होंगे हैं। दोनों diagonal एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे हैं perpendicular. Perpendicular to each other. In an isosceles trapezium, dash sides are of equal measures. उन्हें बोलिए केड़ा ट्राइपेजियम आइसोसेल ट्रेपेजियम। आइसोसेल ट्रेपेजियम दे विच आपां डिस्कस कीता सीगा केड़ियां साइड्स एक पेयर हुंदा पैरेलल साइड्स दा और जेड़ियां नॉन पैरेलल साइड्स हुंदियां वो क्या हुंदियां वा इक्वल हुंदियां। तो आंसर क्या आएगा नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल sides are of equal measure. Non parallel sides जो होंदियां वो क्या होंदियां equal measures ਦੀਆਂ होंदियां isosceles trapezium ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, is it clear? First is adjacent, second answer is opposite, third is perpendicular, fourth is non parallel. Okay, so next question is the following figures are parallelograms. Find values of x and y. Two parallelograms are given and we have to find the x and y. Parallelograms given है x and y ਅਸੀਂ find करने हैं। Parallelogram ਦੀਆਂ properties पता होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ diagonals given है, diagonal ਦੀ property पता होनी चाहिए। Diagonal ਦੀ property ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ diagonal ਜੋ ਹੈ perpendicular ਦੇ और पैरेललोग्राम दे की करते हैं एक दूसरे नु बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो एज तो आप क्या लिखेंगे एज डायगोनल्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर therefore OA is equal to OC and OD is equal to OB। क्या रिजल्ट बनेगा
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, आ डायगोनल ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ए सी ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ओ ए ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ओ सी ਦੇ, और ਜਿਹੜਾ DB डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स ਵਿੱਚ डिवाइड हो जाएगा, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ OB is equal to OD। इज इट क्लियर? हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज, OA क्या है ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2x plus 5 is equal to 15, एक साइड लाइन बन जाएगी। OD is equal to OD है ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8 is equal to OB है y plus 3 इक्वल हो जाएंगे। 2x is equal to 15 minus 5, 2x is equal to 10, x is equal to 10 by 2 means x is equal to 5। Next, now we have to find the value of y। 3 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, is equal to y is equal to क्या आ जाएगा 5। Then we have values as x is equal to 5 and y is equal to 5। This is our answer। Is it clear? Just we have to know our property, then we use that and find the answer। Second part is same, साइड से गिवन है पैरेललोग्राम दिया, साइड से गिवन है तो साइड की प्रॉपर्टी यूज होगी। साइड की प्रॉपर्टी क्या सी कि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम दिया इक्वल होंगी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore KL is equal to NM and KN is equal to LN। दोनों रिजल्ट यूज होंगे। KL है 3x minus 4 is equal to 8 and KN is 3 is equal to y plus 1 upon 2। दोनों इक्वेशंस तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड होएगी, देन सेकंड सॉल्व करेंगे y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, 4 इधर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस हो जाएगा। 3x is equal to 12, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x is equal to क्या आ गया 4। तो इधर क्या होएगा, पहले 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होएगा, is equal to y plus 1, 6 is equal to y plus 1। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x 1 इधर लेके आवांगे, 1 प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, y is equal to 5। तो आंसर इज x is equal to 4 centimeter and y is equal to 5 centimeter। Here also 5 centimeter and 5 centimeter। Is it clear? बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज यूज करनी है एंड x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है जो सेम है, डायगोनल्स की वैल्यूज गिवन है और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके थर्ड पार्ट सेम फाइंड करना है। Okay. Next, third question is find the measure of unknown angles x, y, z and w in the given parallelograms। पैरेललोग्राम गिवन है, एंगल्स फाइंड करने हैं x, y, z and w। ओनली एक एंगल गिवन है 60 डिग्री। दो प्रॉपर्टीज हम दसिया सी इंपॉर्टेंट है, वही प्रॉपर्टीज लगानी है। किहड़ियां ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड सेकंड वन इज adjacent and sum of adjacent angles is 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टीज बस लगानी है। एक कुछ तुहानू पता होना चाहिए 7th ग्रेड में तुसी पढ़िया होया कि एक लीनियर पेयर है, अगर वन लाइन के ऊपर मैं एंगल दो बना रही है, आ लाइन है आ दो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये तुहानू पता होना चाहिए। एंगल Z plus 60 डिग्री is equal to 180 डिग्री because लीनियर पेयर Z is equal to 180 degree minus 60 degree, Z is equal to 120 degree। एंगल Z आ गया 120 डिग्री, Z आ गया 120 डिग्री। बोलो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, Z 120 है तो X भी 120 होएगा। X एंगल X इज एंगल D सॉरी ठीक है, एंगल Z आ गया साडे कोलों, Z की वैल्यू आ गई 120, तो X इज इक्वल टू कितना आएगा साडे कोलों,
x is equal to z because opposite angles are equal। opposite angles equal होंगे या x is equal to z है तो x भी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। x भी फाइंड हो गया, z भी फाइंड हो गया। और x प्लस w दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। x प्लस w कितना आ जाएगा, x प्लस w इज इक्वल टू 120 डिग्री। बिकॉज रीजन मस्ट है, रीजन नहीं होंगे मार्क्स डिडक्ट होंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स है तो सम होना था कितना होएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू है 120 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। w इज इक्वल टू इधर प्लस हो रहा है 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो w इज इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री। w भी फाइंड हो गया, जितना w है उतना ही y होएगा। y इज इक्वल टू w बिकॉज अपोजिट एंगल्स। सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, पूरा क्वेश्चन थोड़ा हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 120। एट द एंड ऑल एंगल्स तुसी दे देने हैं। x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120, z इज इक्वल टू 120 एंड w इज इक्वल टू w is equal to sorry here is 180 minus 120, sorry 180 minus 120 is 60, y is also 60, x is 120, y 60, z is 120 and w is also 60 degree. These are the all are the measures of angles x, y, z and w. Okay, next question is again question is same. Find x, y, z and w. First only n is given. n given है जो easy है start from that. easy क्या है साडे कोलों n ਦਾ opposite है पैरेललोग्राम दिख रहा है सब ਨੂੰ ਆ डायगोनल ਨੂੰ इग्नोर करो पैरेललोग्राम दिख रहा है पैरेललोग्राम विजिबल हो रहा है तो n ਦਾ opposite एंगल की है p एंगल है n एंगल is equal to n p एंगल because opposite angles। रीजन देने मस्ट है, ठीक है रीजन जरूर देने हैं। n 75 है तो एंगल p भी कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक है n 75 है बिकॉज n इज इक्वल टू 75 डिग्री एंगल n। तो p इज द एंगल p 75 है मींस कितना p एंगल है कितना z इज इक्वल टू 75, z 75 हो गया। z एडजेसेंट एंगल इधर ले लिया x प्लस 50 दोनों का सम कितना होएगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल का। y नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते क्योंकि एडजेसेंट एंगल पूरा आएगा कंप्लीट नहीं है, यानी कि y ਇਹਦਾ हाफ लिया होया उन्होंने तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ कंप्लीट चाहिए, ठीक है तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ एंगल p प्लस एंगल PON is equal to 180 डिग्री adjacent एंगल एंगल P क्या है Z प्लस PON कितना है x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा इस पॉइंट को क्लियर कर लो कि इस पूरा एंगल आप लेना इन्ना पूरा एंगल लेना जो पैरेललोग्राम का है। इस चीज को निगलैक्ट कर दियो, इस चीज को निगलैक्ट कर दियो। पैरेललोग्राम विजिबल हो रहा सब नु, पैरेललोग्राम का पूरा एंगल लेना तुसी Z एंड x प्लस 50। तो Z है 75, 75 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों प्लस हो जाएंगे क्या बन जाएगा साडे कोलो 125 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 125, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 55 तो x 55 है तो आप पूरा एंगल कितना हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 55 प्लस 50
इज इक्वल टू 105। तो y ठीक है जी। तो तुहाडे कोलों ये तो हल स्किप करो फिलहाल। x आ गया तुहाडे कोलों 55। नैक्सट हम फाइंड करना तुसी y एंगल एंड w एंगल। हुण देखो आ भी पैरेलल लाइन है, एक आ भी पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन्स जा रही हैं। एक आ वाला एंगल कट हो रहा है, एक इधरों आ एंगल कट हो रहा है। आ दोनों एंगल्स केड़े बन रहे हैं साडे कोलों? जी देखो इस एंगल की गल कर रहे हैं आप W की। आ टू पैरेलल लाइन्स जा रही हैं, इस एंगल को लीव करो फिलहाल। आ टू पैरेलल लाइन्स जा रही हैं, आ लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। 7th ग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़े सी ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ एडजेसेंट एंगल्स जा रहे हैं, F ਤੇ बन रहे हैं। तो ये बोथ एंगल्स क्या होंगे आ? इक्वल होंगे आ। जे जिन्ना एंगल ए होएगा उन्ना ही एंगल W होएगा। ए वाला एंगल केड़ा है? Z। Z एंगल की है साडे कोलों 75। तो क्या आएगा साडे कोलों? एंगल Z इज इक्वल टू W। रीजन क्या आ जाएगा साडे कोलों? तो इन्हों आप क्या बोलते हैं? W एंड Z दोनों एंगल इक्वल आएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इन 7th ग्रेड चीज स्टडी की होएगी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तुहानू ट्रिक क्या दस्सिया सी याद रखन दा कि F अगर बन रहा होए तो दोनों जिहड़े विच वाले एंगल्स हुंदे आ दोनों क्या हुंदे आ? इक्वल हुंदे आ। हुण तुसीं क्या देखना वा, एक लाइन तुसीं आवली लो, ट्रांसवर्सल ले लो, हाँ आ लो पैरेलल लाइन्स, आ दो पैरेलल लाइन्स जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल जा रही है। जो तुहाडा अगला विच वाला एंगल बन रहा और आ विच वाला एंगल बन रहा, बोथ एंगल्स क्या होंगे आ? इक्वल होंगे। ये दस्सिया सी तुहानू Z दी फॉर्म दे विच एंगल्स होंगे आ। किहड़े एंगल होंगे आ? ये Z दी फॉर्म दे विच एंगल होंगे आ। ये बोथ एंगल्स आल्सो आर इक्वल। पहले Z वाला लिख लेंगे आ। Z इज इक्वल टू कितना आएगा तुहाडे कोलों? Z 75 ऑलरेडी है, W भी क्या आ जाएगा? 75। हुण आपां किहदी दी गल कर रहे हैं? आ वाला एंगल आ रहा है, एक 50 और दूसरा Y एंगल। तो क्या आएगा? Y एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन की आएगा? Z दी शेप दे विच एंगल बन रहे हैं, इन्हां नूं आपां किहड़े एंगल बोलदे आ? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। तो लास्ट में आंसर जरूर देना। ये याद रखनी है 7th ग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। Z शेप अगर बन रही है अल्टरनेट एंगल्स, F शेप बन रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लास्ट में एंगल्स जरूर सारे देने हैं। X इज इक्वल टू 55 डिग्री, Y इज इक्वल टू 50 डिग्री, Z इज इक्वल टू 75 एंड W इज आल्सो 75 आंसर। इधर जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम है, तुसी वो खुद ट्राई करना है। ठीक है, नाउ वी विल डू दी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, the next fourth question is the parameter of parallelogram is 200 centimeter। मीन्स एक पैरेललोग्राम है, ओदा पैरामीटर जो है गिवन है, कितना गिवन है? 200 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज, मतलब एक साइड जिहड़ी आ वो कितनी है? लॉन्गर देन दी अदर साइड, दूसरी साइड तो लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मीन्स कि अगर जे शॉर्ट साइड जिहड़ी है, शॉर्टर साइड जिहड़ी है 10 है, तो लॉन्गर जिहड़ी है सॉरी x है, तो लॉन्गर कितनी होएगी? x प्लस 10। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। दोनों चारों साइड्स मीन्स असीं फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की स्टार्ट करांगे। पहला असीं सानू पता होना चाहिए साइड्स की प्रॉपर्टी क्या है। सपोज वी हैव दिस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, एक शॉर्टर साइड है जिहड़ी, एक x है। जिहड़ी लॉन्गर साइड है वो कितनी है? x प्लस 10।
सानू पता है कि अपोजिट साइड ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टीज वाली जो प्रीवियस वीडियो वो अच्छी तरह देखनी है तुसी ताकि तुहानू क्वेश्चन सारे ही विदाउट एनी डाउट क्लियर हो जान ऑपोजिट साइड इक्वल है एक्स इज इक्वल टू एक्स लवांगे दोनों साइड ऑपोजिट इक्वल लवांगे अगर एक एक्स प्लस 10 है तो दूसरी भी एक्स प्लस 10 ही होएगी ठीक है तो अपन लेट करांगे सॉल्यूशन लेट शॉर्टर साइड is equal to x longer side sides लिख लो shorter sides xx longer sides x plus 10 x plus 10 सेंटीमीटर ठीक है सेंटीमीटर पैरामीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर क्या होता है किसी भी शेप का सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑलरेडी अपन देख चुके हैं 2x है साइड से 2 साइड्स x plus 10 x plus 10 है ऑल साइड्स में प्लस कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर x plus x plus x plus 10 plus x plus 10 is equal to 200 x plus कर लूंगे तो क्या 4x है 4 हो जाएंगे 1 2 3 4 4x आ जाएगा plus 10 20 is equal to 200 4x is equal to 200 20 इधर प्लस है उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा 4x is equal to 180 x is equal to 180 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 45 कटिंग कर दूंगे जो डिवाइड कर दूंगे जिस तरह भी तुम कर सकते हो ठीक है x इज इक्वल टू क्या आ गया 45 सेंटीमीटर x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर तो साइड्स उन्हें फाइंड करने को बोलिया देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पेयर ऑफ साइड तो साइड से क्या आ गई साडे कोल xc ਜਿਹੜੀ ਆ वो आ गई 45 सेंटीमीटर और ਜਿਹੜੀ दूसरी लॉन्गर साइड है longer side that क्या है x plus 10 that means 45 plus 10 is equal to 55 centimeter is it clear everyone okay next question number 5 is PQRS is a trapezium. Question is of trapezium. Trapezium given है PQRS. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ if measures of angle P is 65 P angle ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 65 degree and Q is 115 Q angle 115 given है then find the other two remaining angles of given trapezium जो remaining angles है means S ਤੇ R angles ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ find ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਨੋਂ remaining angles तो ਹੁਣ देखो ट्रेपेजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਆ प्रॉपर्टी ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री वही प्रॉपर्टी यूज करांगे तो सॉल्व कर देंगे बहुत वेरी इजी क्वेश्चन एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन क्या आ जाएगा सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री तो एंगल P इज 65 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 65 115 डिग्री एंगल S आ गया 115 एंड एंगल R plus angle Q is equal to 180 degree. Reason is again same reason आ जाएगा फिर sum of adjacent angles is 180 degree. जिन्नी बार रिपीट हो चुकी है प्रॉपर्टी सानू याद हो चुकी आने चाहिए कि adjacent angle sum adjacent मतलब ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ एंगल्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨों एंगल ਦਾ प्लस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है एंगल R कितना साडे कोल फाइंड करना है
प्लस एंगल Q कितना 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 115 65 आंसर। तो आंसर क्या आ गया, एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 115 आंसर। इज इट क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं ਆਪਾਂ, ठीक है। क्वेश्चन 5 तक आज हो गया। tomorrow we will do question number 6 to question number 11 of exercise 3B। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रॉपर्टीज वाली वीडियो जरूर देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख के ही तुसी एक्सरसाइज करना, इट विल बी वेरी इजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।